Let's come back to our chapter. I hope everyone has completed their homeworks and their classworks and their synonyms and antonyms and whatever I have prescribed you already. अब हम आते हैं हमारे थर्ड सेक्शन ऑफ द चैप्टर. हमने अभी तक पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं. There was a 10 days old kid who was very predicted to be a great warrior, a powerful king, a powerful monarch. And the astrologers made a prediction when he was just 10 days old that this guy or this prince or this king will be killed by a tiger because of the astrology or because of the constellations, because of his stars, because of his fate or destiny or whatever you want to say. His death will be because of a tiger. So all these things is happening, and the tiger king grows up and he hears the rumor कि जब मैं छोटा था, when I was a child, तब ऐसा ऐसा कुछ हुआ था. तो what I have to do, I have to kill the tiger. टाइगर मुझे मारे इससे पहले मुझे टाइगर को मार देना चाहिए. तो he went on a tiger hunt mission and he killed one tiger and he brought the tiger's corpse. corpse. वैसे corpse is a word which is used for dead body of human beings. कोई मुझे बता सकता है एनिमल्स की डेड बॉडी के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनीवन हु कैन टेल मी? एक वर्ड आता है कार्कस. या उदिता, द स्पेलिंग इज दिस कार्कस. एक और वर्ड आता है कडावर. Cadaver is usually used for animals which are used in lab experiments. तो वो जो स्पेसिमेन होते हैं उनको कैडावर बोलते हैं. कैडावर लैब्स भी होती हैं जहां पर डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स को स्टोर किया जाता है. तो दैट इज योर कैडावर. कार्कस जो बोलना है. अगर आप कॉर्प्स भी बोलते हैं, नॉट अ बिग डील, बट कॉर्प्स इज यूजुअली यूज फॉर ह्यूमन बींग्स. कार्कस हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. So the carcass or the corpse of the tiger was brought to the kingdom, brought to the palace. और एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया और बोला कि देखो मैंने इसको मार गिराया है. I have assassinated the tiger. What do you have to say for that? So Piyush, Punit, it's a request. Please turn off your video. It's distracting. Please turn off your video. Yeah. So वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है 99 टाइगर्स आप ऐसे ही मार दोगे. यू विल नॉट face any kind of grave danger, or you will not die while killing 99 tigers, but your death will be caused by the 100th tiger. You should be aware, you should be very much careful of the 100th tiger, because he will be the end of you. वो आपको मार देगा. That was the word of chief astrologer. अब हम पढ़ते हैं हमारा थर्ड वाला. From that day onwards, it was a celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. Inhabiting मतलब to live, to reside, to live or to reside. अब this is also a very humorous line. Humorous line, क्या humorous line है? That उस दिन के बाद में, किस दिन के बाद में, जब एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपको 100 टाइगर से बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम वर सेलिब्रेटिंग. भाई किस बात का सेलिब्रेशन? बिकॉज नाउ इमेजिन व्हाट विल हैपन. टाइगर किंग विल लॉन्च अ न्यू रूल, अ न्यू कमांड, अ न्यू ऑर्डर दैट नो वन एक्सेप्ट हिम. एक्सेप्ट की स्पेलिंग देखना, एक्सेप्ट, उसके अलावा उसको छोड़कर, no one except him is allowed to kill the tiger, to poach the tigers, to hunt the tigers. हम पूरा समझते हैं पैराग्राफ, then I will make you explain this line. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. The state band, the state मतलब यहाँ पे the kingdom, the royal palace, उन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला और उसमें क्या था? द स्टेट बैंड. बैंड मीन्स प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड. एक तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया गया. क्या बोल दिया गया? टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. महाराजा के अलावा प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर हंटिंग
नहीं करेगा. A proclamation, proclamation, declaration, declaration, announcement, you can say. Announcement was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property will be confiscated. कि if anyone had the audacity, मैं एक word लिख रहा हूँ, audacity. Audacity मतलब दुस्साहस जिसको हम बोलते हैं. Dare मतलब क्या होता है कि हम किसी के लिए साहस करते हैं, तो audacity मतलब दुस्साहस. किसी ने इतनी हिम्मत भी की, किसी ने इतनी हिमाकत भी की, ऑडासिटी भी दिखाई टू फ्लिंग. फ्लिंग मींस थ्रो. फ्लिंग मींस थ्रो. टू थ्रो एज मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर. अगर किसी टाइगर पे जनता ने स्टोन भी डाल दिया, फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा? उस पर्सन की वेल्थ एंड प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी. प्लीज रिपीट द मीन. मैं समझाता हूं, डोंट वरी. अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट. सरकार ने, सरकार तो वहां होता नहीं था, राजमहल से किंग ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जारी कर दिया. क्या अनाउंसमेंट था? दैट इफ एनीवन विल फ्लिंग अ स्टोन, किसी ने उस टाइगर पे स्टोन फ्लिंग करने की भी हिम्मत की. डेयर मतलब डेयर मतलब क्या होता है? डेयर मतलब हिम्मत करना, साहस करना. तो यहां पे यही है कि अगर किसी बंदे ने टाइगर पे छोटा सा स्टोन थ्रो करने की भी हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, तो उसकी सारी वेल्थ, सारी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा बाय फोर्स. कॉन्फिस्केट मतलब कैप्चरिंग बाय फोर्स, जबरदस्ती लूट लेना किसी से. दैट इज कैप्चरिंग बाय फोर्स, कॉन्फिस्केटिंग. यूजुअली गवर्नमेंट और सरकार और ये जो राज्य अधिकारी होते हैं, ये किसी चीज पे अपना अधिकार जमा लेते हैं, अथॉरिटी जमा लेते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केटिंग. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केटिंग. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ये वाला आपको पैराग्राफ क्लियर होना चाहिए. ये वाला मैं अभी बताऊंगा. दिस सेकेंड पैराग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? यस, जल्दी से यस लिख के भेजो मुझे. अरे यार, ये पुनीत व्यास इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिक गाय. बार बार आपका वीडियो ऑन कहां से होता है? या तो आप ब्रेक ले लेके आ रहे हैं. ओके ओके, यस, गॉट इट गाइस. ऑलराइट, तो नाउ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट पैराग्राफ. व्हाट इज इट सेइंग? हमने देखा कि टाइगर किंग हैज बैंड द पोचिंग और हंटिंग और किलिंग ऑफ टाइगर इन हिज किंगडम. तो इसलिए क्या हो गया? टाइगर्स के जो प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स रहने वाले थे, उन टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन का टाइम हो गया. अब एक्चुअल में सेलिब्रेशन था नहीं था वो हमें बाद में पता चलेगा, बट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए ह्यूमरस कॉमेडी वाला लाइन. तो क्या हो गया? लेट मी टेल यू. पहले टाइगर को पोच करते थे 100 जने. टाइगर हंटिंग पे जाते थे 100 जने. टाइगर्स थे सपोज 100. सपोज देयर वर 100 टाइगर्स. इनको मारने के लिए 100 लोग जा रहे हैं. तो the ratio that one tiger is killed by one person is this. ये पर्सन का रेशियो, ये टाइगर का रेशियो. और अब रेशियो क्या हो गया? 1:100. तो टाइगर्स के मरने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. वो कम होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट ये कहने का मतलब ये है कि टाइगर्स के सेलिब्रेशन का टाइम इसलिए आ गया बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर डेथ, the possibility of their hunting will decrease because now only one person is allowed to kill the tigers. Previously, entire public of Pratibandpuram was free, was having the freedom or independence or liberty to kill the tigers. Abhi aisa case nahi tha. So he told me that he is not able to hear you.
सी मुझे सुनना और उसका वीडियो देखना इज नॉट अ कनेक्शन. कनिका, यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू हियर मी. आप अपना सेटिंग चेक करो जूम का. Because how many participants are there? 61 participants are here right now. And I guess अगर प्रॉब्लम होता तो सब जने मुझे यही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते कि सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि पेशेंस हम में कितना है? 0. ऑलराइट, यू मे हैव डिस्कनेक्टेड ऑडियो. ये महक को मतलब इतने प्रिजम्पशंस होते हैं. आई एम टीचिंग अ चैप्टर, आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन, और उसमें शी इज सेइंग दैट यू मे हैव डिस्कनेक्टेड ऑडियो. आपको सुनाई दे रहा है ना महक? दैट्स व्हाट यू हैव टू केयर अबाउट. अब सॉरी भी प्राइवेट क्यों भेज रहे हो? सॉरी भी एवरीवन को भेजो ना. एवरीवन शुड सी दैट यू आर सॉरी फॉर योर स्टेटमेंट. All right, let's come back to our chapter. The Maharaja vowed, he promised, he pledged, he took an oath. उसने एक oath ली, उसने एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया. क्या संकल्प लिया? That he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Again, किंग था. मैं अपनी इच्छा से जो चाहिए वो कर सकता हूं. आई विल फुलफिल ऑल माई सेल्फिश मोटिव्स. स्टेट के मैटर्स, किंगडम के मैटर्स, फैमिली के मैटर्स, सोसाइटी के मैटर्स, सारी चीजें मैं बाद में अटेंड करूंगा. मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा टाइगर हंट के मिशन में कुछ ना कुछ बैरियर हो, कोई ऑब्स्टिकल हो, कोई हर्डल हो, कोई डिफिकल्टीज हो. I will attend to all these matters after killing the 100 tigers. This this showcases, or this describes the self-centeredness of the tiger king. Explain the meaning of fling. Fling matlab throw karna. फेंकना. Fling means throw. तो द महाराजा वाउड, ही टुक एन ओथ, कि मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं ये प्रण लेता हूं कि दूसरे सारे कामों को मैं 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही अटेंड करूंगा. ही टुक सच ओथ, सच प्लेज, सच व्हाट वी कैन से वाव. इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. ही वॉज वेल सेट. ही वॉज, वो बोलते हैं 1 2 3 रेडी सेट गो, उस कंडीशन में था. ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, ही वॉज वेल सेट फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली, that he will be able to accomplish his goal, accomplish his target. And what was the target? To kill the 100 tigers. To kill the 100 tigers. अभी तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ. Any doubt you have? No, son. All right. If you have doubt, you can let me know whenever you want. अब बोल रहे हैं, नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स. अभी 100 टाइगर्स को मारने का लक्ष्य है, तो इट विल नॉट बी विदाउट एनी डेंजर और हार्म. देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, देयर विल बी सर्टेन हर्डल्स, देयर विल बी इम्पेडिमेंट्स, देयर विल बी डेंजर इन हिज पाथ. 100 टाइगर्स को मारने का काम कोई आसान काम नहीं है. So there were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. This line shows the courage, the bravery, the boldness of the Tiger King, the power and the strength of Tiger King. तो क्या हुआ? बहुत सी बार ऐसा होता था. There were times, there were numerous times, there were number of times. What happened? The bullet missed its mark. अब टाइगर हंटिंग कैसे होती है? ऑफ कोर्स गन से होती है. तो मेनी अ टाइम्स जब टाइगर किंग अपना टारगेट की तरफ, सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू. सी व्हाट हैपेंस, जब हम जूम में लॉग इन करते हैं, उसमें एक सेटिंग होती है कनेक्ट टू ऑडियो. जब आप वो डिसेबल कर देते हो, देन यू आर नॉट एबल टू हियर एनीवन. वो होस्ट हो या कोई दूसरा हो, you cannot you are not able to hear it because you have disconnected the audio. Go back, आप मीटिंग को लीव करो,
उस सेटिंग को चेंज करो और वापस एंट्री लो. आई विल एडमिट यू इन द क्लासरूम. ऋषभ सिंह शेखावत को मैं रिमूव कर रहा हूं बिकॉज ही इज आस्किंग सर विच चैप्टर स्टडी. Let's remove this guy. He does not deserve to be in our class. आई मीन दिस इज, ये होती है ओडासिटी, ये होती है डेयरिंग. मतलब 21 minutes have been passed since I'm teaching and you are asking me now, sir, which chapter you are studying, which chapter study. मतलब ग्रामेटिकल एरर्स की बात तो छोड़ो, आप क्वेश्चंस इतने वाहियात पूछ रहे हो. I mean, there is some sort of shame or some sort of hesitation in your mind or not, कि हम क्या पूछ रहे हैं. और कुछ भी नहीं तो टाइगर किंग तो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ टाइगर किंग लिखा हुआ है. अपना एम्बैरेसमेंट बचाने के लिए कम से कम ये तो स्किम कर लो कि फ्लेमिंगो और विस्टास 2 बुक हैं, उसमें से टाइगर किंग कहाँ मिलेगा. ये तो एक क्विक रिजल्ट, एक क्विक गूगल सर्च कर लो यार कि टाइगर किंग क्या है, कहाँ कौन सा चैप्टर है. और पूछ रहा है एवरीवन में. ये कौन जानता है ऋषभ सिंह शेखावत को? हु नोज दिस पर्सन? मतलब आप इतनी देर से बैठे हो क्लास में एंड हैव नो आइडिया. चलो हम आते हैं हम चैप्टर पे. नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, ऑफ कोर्स देयर वर डेंजर्स. बहुत सारी बार ऐसा होता था, द टाइगर किंग यूज्ड टू टेक एन एम एट हिज टारगेट एट द टाइगर. एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन, उसका एम जो है वो मिस हो जाता था. एम जो है वो मिस हो जाता था, वो मार्क जो है वो मिस हो जाता था. एंड द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम. लेफ्ट जो है वो लीप का सेकंड फॉर्म है. लीप मीन्स टू जंप. तो अब जब मार्क जो है वो मिस हो गया तो टाइगर क्या करेगा, उस पे जंप करेगा, टाइगर किंग पे जंप करेगा. वो जिलानी जंग जंग बहादुर जो है, प्रतिबंधपुरम का राजा जो है, उसके ऊपर टाइगर जंप मारेगा. एंड ही फॉट द बीस्ट वाइल्ड एनिमल. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. वाइल्ड एनिमल. He fought the beast with his bare hands. अपने खुद नंगे हाथों से वो उस टाइगर से लड़ता था. तो बहुत सारी बार ऐसा होता था that the tiger king used to fight the tiger with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. Of course, the Maharaja used to win every time. अगर टाइगर जीतेगा तब तो महाराजा का दी एंड हो जाएगा. This will mark the end of Maharaja if tiger used to win. That is why it is said that Maharaja used to win every time. This just goes on to show that how courageous, how amazing he was. At another time, he was danger of losing his throne. This is very important. At another time, he was in danger of losing his throne. पुनीत, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. क्या आप एक बार मुझे बोल के बताना आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, पता चल जाएगा. वेट अ मिनट. वेयर इज पुनीत? इसमें दिख भी तो नहीं रहा है पुनीत. ये रहा. आपकी आवाज भी नहीं आ रही है पुनीत मुझे. आई एम नॉट एबल टू इवन हियर यू. वाओ. आई रियली अप्रिशिएट हिम लिसनिंग टू मी विदाउट इवन हियरिंग मी. ये होता है डेडिकेशन. आप लोग सबक लीजिए कुछ पुनीत से. All right. At another time, he was in danger of losing his throne. This story is very important. एग्जाम में पूछते हैं. इस बार 2019 के एग्जाम में भी ये वाली स्टोरी पूछी गई थी. यू हैव टू रिमेंबर द स्टोरी. बहुत इंपॉर्टेंट है.
एक बार ऐसा आया कि टाइगर हंट के चलते उसको अपना थ्रोन, थ्रोन मीन्स द सीट, रॉयल सीट, रॉयल चेयर, तो रॉयल सीट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट, द एंटायर किंगडम। राजगद्दी पे बैठने वाला राजा होता है, तो अगर राजगद्दी को खो देगा मतलब वो किंगडम को खो देगा। तो ही वॉज इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, हिज किंगडम। what happened? A high ranking British officer visited Pratibandpuram. I already explained to you that that was the time of British Raj, और ब्रिटिश राज के टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो ज्यादा डोमिनेटिंग थे। इवन दो किंग्स और प्रिंस रूल करते थे, फिर भी उनमें ब्रिटिश ऑफिसर्स का लेके डर बहुत ज्यादा रहता था। तो अ हाई रैंकिंग, अ वेरी प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, a very prominent British officer visited Pratibandpuram. He was very fond of hunting tigers. Very fond of, he was very interested in. उसकी hobby थी of hunting tigers. He used to hunt tigers for fun. And fonder of being photographed with the tigers he had shot. इंटरेस्ट था किसमें? हंटिंग टाइगर्स में। उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट किसमें था? ऑफ हैविंग अ फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। टाइगर्स की डेड बॉडी के साथ में अपना पिक्चर क्लिक करवाने का उसको बहुत शौक था, इंटरेस्ट था, हॉबी था। He was fond of hunting tigers. Okay. And fonder, fonder is a comparative degree. Fond, fonder, fondest. तो ये comparative degree है, और he was fonder of hunting tigers. Sorry, he was fonder of capturing a photograph with the dead body of tigers. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. सर एग्जाम में मार्क्स, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है विस्टार्स में। तो 6 मार्क्स इज लाइक द हाइएस्ट मार्क्स इन लिटरेचर। तो यू हैव टू बी वेरी गुड एंड वेरी एक्यूरेट व्हाइल राइटिंग दीज आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स होते हैं। आपके फ्लेमिंगोज में से, आपके फ्लेमिंगोज में से 2 मार्क्स के भी आते हैं, और 4 मार्क्स के भी आते हैं, 6 मार्क्स के भी आते हैं। बट विस्टार्स में सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो यू हैव टू बी रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना ग्रामेटिकल एरर के बिना लिखना आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो क्या हुआ? He visited Pratibandpuram, the British officer. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. Firm होना मतलब जिद्दी होना, adamant बोल सकते हैं, stubborn बोल सकते हैं, obstinate बोल सकते हैं, obstinate. I'm writing it here. तो महाराजा जो था वो अपने प्रॉमिस में, वो अपने प्रॉमिस में बहुत ही फर्म था, बहुत ही एडमेंट था। हाउ मेनी चैप्टर्स आर रिड्यूस्ड नमन? आई विल टेल यू। चलो अभी चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मार्किंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली स्टोरी हम कल समझेंगे क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आई विल लेट यू नो। वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस? अभी तक आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का होता था। लिसन टू मी केयरफुली। आपका 20 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। दिस इज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। और लिटरेचर में आपका क्या आ जाता है? फ्लेमिंगो एंड विस्टास। और सबसे ज्यादा मार्क्स किस में कटते हैं? इस वाले में। रीडिंग आप कर लेते हो, राइटिंग भी कहीं हद तक आप कर लेते हो, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आपका 12 मार्क्स का अनसीन पैसेज, 8 मार्क्स का नोट मेकिंग। ऑलराइट, हो गया सर। इसमें आपके बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें आती हैं, जिसमें आपका नोटिस, आर्टिकल, एडवर्टीजमेंट, स्पीच, डिबेट, ये सारी चीजें हैं। और इसमें आपके चैप्टर्स। नाउ एज पर 2021 का 12th का सिलेबस, उसमें विस्टास में आपके 4 चैप्टर्स डिडक्ट करवा दिए हैं। उसमें टाइगर किंग को भी हटा दिया गया है, टाइगर किंग को भी हटा दिया गया है। बट 2022 में है आपका एग्जाम, तो 12th का एग्जाम आपका तो 22 में है।
तो 22 में these chapters will return again. तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आपको मैं अभी टाइगर किंग पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके 2022 के एग्जाम में आप आराम से इसको कर सको। अभी ये चैप्टर्स क्यों एलिमिनेट करवाएं? 30% ऑफ द कोर्स हैज बीन एलिमिनेटेड, आपको पता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो 2022 तक तो कोविड-19 रहेगा नहीं, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और दैट इज वाई आपको टाइगर किंग पढ़ा रहे हैं। और अगर टाइगर किंग एग्जाम में नहीं भी आता है 2022 में, तो अभी 2021 में आपका जो 11th का एग्जाम होगा, उसमें तो कुछ तो चैप्टर आएगा, उसमें आपका टाइगर किंग का चैप्टर मैं 100% देने वाला हूँ। इट इज माई फेवरेट चैप्टर, और इसके पीछे का मैसेज बहुत अच्छा है, इसमें वोकैबलरी बहुत अच्छी है, और ये इंडियन राइटर ने लिखा है। कल्कि इज इंडियन राइटर। बाकी विस्टास के दूसरे चैप्टर्स जो हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में फॉरेन राइटर्स हैं। तो आई वांट कि आप इंडियन राइटर्स का ह्यूमर भी एक बार पढ़ के देखें। तो अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सिलेबस का लेके कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ पढ़ाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे, और एक्स्ट्रा भी अननेसेसरली नहीं पढ़ाएंगे। कोई भी जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है उसी टाइप का पढ़ाएंगे। हम इंग्लिश फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वी आर रीडिंग फॉर आवर ओन नॉलेज, for our own understanding, for our own vocabulary, for our own grammar. So I want कि हम इन सब के साथ में चैप्टर्स और मार्क्स और एग्जाम्स के साथ साथ में अपनी एक्चुअल इंग्लिश पे भी वर्क करें, तो दैट विल बी ऑल्सो रियली बेटर। विल टेल यू द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर सर। पीयूष, इस चैप्टर के मैसेज को मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सस्पेंस है। तो आई वांट कि वो सस्पेंस खत्म ना हो, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नॉट रीड द चैप्टर इन एडवांस। आप अब बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के आदत होती है, इवन मेरी भी आदत थी, दैट आई यूज्ड टू रीड द चैप्टर्स इन एडवांस, पहले से ही पढ़ के रख लेता था। तो इसका सस्पेंस जो है वो हम साथ में ही रिवील करेंगे, साथ में ही खोलेंगे, तो दैट वुड बी मोर फन, अच्छा लगेगा। बाकी एट द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल रिवील इट कि क्या मैसेज है और क्या नहीं है। और ये वाली जो स्टोरी है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। इस स्टोरी को आज कंप्लीट करने से कोई मतलब नहीं है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, और इसमें भी काफी फनी एलिमेंट्स हैं। ये जो स्टोरी है हमारी, इट्स ऑल्सो क्वाइट फनी कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम को विजिट करता है। उसके दो चीजें हैं। आई हैव डन दैट, नंदिनी एंड महक ने पहले पढ़ लिया। बोलते हैं डेढ़ होशियार नहीं बनना चाहिए। भाई, मैंने बोला ही नहीं आपको पढ़ने का। और जब मैं शुरू के फर्स्ट दिन से बोल रहा हूँ कि इसमें सस्पेंस है, सस्पेंस है, सस्पेंस है, तो क्यों पढ़ना सस्पेंस को खराब करना। चलो कोई बात नहीं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रेड द चैप्टर, दे विल बी एबल टू एंजॉय द सस्पेंस विद मी, एंड अदरवाइज जिन्होंने पढ़ लिया उनका लॉस। नोट डाउन टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नोट डाउन करो। आज का क्वेश्चन नोट डाउन करो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो आपके लिए। आई एम राइटिंग इट हियर। Why did the Tiger King ban the hunting of tigers? और did के साथ में verb की first form use करते हैं। Why did the Tiger King ban the hunting of tigers in प्रतिबंधपुरम? तो इसमें आपको लिखना है, after killing the first tiger, he showed the dead body of the tiger to the chief astrologer. The chief astrologer said that the Tiger King may continue to kill 99 tigers without any harm, but his actual death will be caused by the 100th tiger. So the Tiger King went on a tiger hunt mission, and he did not want any other people to kill any tigers in the Pratibandpuram. So he made a proclamation, he made an announcement, और फिर वो announcement जो था वो ये वाला announcement आपको लिखना है।
that if anyone even has the audacity to throw a stone at the tiger, then their property will be confiscated. ये आपका क्वेश्चन है, और आई होप आप सिनोनिम्स जो है वो आप कर ही रहे होंगे अपने कॉपीज में. बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और आइंदा से मुझे स्टूपिड क्वेश्चंस ना पूछें कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, नहीं चल रहा है. बाय बाय.